देखने में अच्छा लग रहा है, टेक्निकली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, आपकी चॉइस है, आपको लेना है, नहीं लेना है, आप देख सकते हैं। Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀 and we're going to talk about in this video a stock which looks pretty promising to me. ये स्टॉक है एग्रो कम्युनिटी का और जो इसके फंडामेंटल्स है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी देयर इज अ ग्रोथ इन द सेल्स, द you know what you say, borrowings are quite less and they are generating cash day after day. Their EPS is growing and they are from agriculture sector, which I believe will get a lot of incentive from the government. So there are few things and then combine it with technicals. अगर इसको combine करते हैं technical के साथ तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बात करते हैं और उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं बात कर रही हूँ एरीज अग्रो की। तो एरीज एग्रो जो है 270 करोड़ की कंपनी है और इसका पी कुछ 16 है, ROC is 13%, ROE is about 5.33%. Company has reduced debt and company stock is trading at 1.08 times its book value. So बहुत close है book value के. But there are some cons also. That company has a low return on equity, contingent liability. मतलब लगातार ये liability इनके ऊपर चली आ रही. Contingent liability means कि year on year they are carrying it forward, which is not a good thing, right? The dividend payout has been low, and then company's cost of borrowing seems high. These are very serious concerns. But as I saw the graph, as I saw the pattern, as I saw the money deployed in the stock today, it was absolutely awesome. So let me just talk about what does exactly the company do. The company sells its own manufactured product and also trades in the same product lines. Revenue from manufactured products stood at 66% and which was about 80% in year 17. So what are the things that they sell? Agricultural micronutrient and specialty fertilizer. They sell insecticide and pesticides, animal feed and feed concentrates. On the manufacturing capacity, the company has manufacturing plant at Mumbai, Hyderabad, Central, Chhatral and Lucknow, and total capacity utilization is about 67% of the total installed capacity against utilization of 60% in year 18. Manufacturing, like that means they are they are basically utilizing higher capacity at this point of time. Then the new product, Aries Agro Limited introduced 7 new upgraded products like Aries Soft, Aries Potash, Fortimax HD, a lot of products they have introduced. So they have subsidiaries, manufacturing unit of Mirabelle Agro Manufacturing Private Limited at Chhatral. And they have global business as well. They have international clients located in Kenya, Nigeria, Nepal, and Taiwan. Sales were booked for Kenya, Nepal, and Taiwan. Distributors in Nepal have put their own manufacturing unit to support their sales. So, agricultural drone operation. Aries is also the first Indian companies to receive DGCA license of agriculture for agricultural drone operations. A 100-day campaign called Drone Yatra will be launched was launched between August and October 2021 to exhibit the accurate use of drones for crop nutrition spray. So, like the company looks pretty much futuristic. One point. The second that I want to show you the company, what exactly they do. So here is the company's, website, and if you go to their products, they are into micronutrients, water soluble NPK, organic bioproducts, high density inputs, crops specific. I mean, हर एक crop के specific they have fertilizers or nutrient. They are in aquaculture and animal nutrition and into other products as well. So you can visit the website. और अब थोड़ा सा और इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम सेल्स को देखें तो 2019 से लेके और 2022 तक सेल्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 टाइम तो हो चुकी है, राइट? द
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए इन बिटवीन, लाइक 2021 में, 2020 में, 2021 में थोड़े डिक्लाइन हुए। अब फिर से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर हेडिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम ईपीएस की बात करें तो कभी 8.7 था, फिर थोड़ा डिक्लाइन होते होते अब वापस 11 रुपए पे अर्निंग पर शेयर आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिविडेंड पे आउट, तो एक समय था ये लोग बहुत हैंडसम डिविडेंड पे आउट कर रहे थे, बट रिसेंटली द डिविडेंड पे आउट हैज बीन लिटिल लो। ओके, जहां तक हम बात करते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस की, 2011 में 161 करोड़ थी एंड मार्च 2022 में इट्स अबाउट 440 करोड़। नाउ बात आती है कि इनके what is happening to the reserves, are the reserves growing? So if you notice ईयर ऑन ईयर बेसिस 2011 में 116 करोड़ थी और आज की डेट में इनके पास 235 करोड़ है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो रिजर्व्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। देयर इज अ कंटिन्यूस ग्रोथ इन द रिजर्व्स। जहां तक बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं तो बोरोइंग्स जो है डिक्लाइन पे है, 150 से 143 to 112 and now 82 crores. So that is a positive sign. That I would consider that as a positive sign. Then comes the cash from operating activity. So notice करिए कि 2000 there was a decline in 2018. उसके बाद 2020 में भी डिक्लाइन नहीं आया, 2021 और 2022 दोनों में there has been a pretty much growth. But there has been some, let's see what are they doing with their cash. So they are buying fixed assets and that is why they are giving this money. So company is building up their assets. Other investing items, they are investing about 5 crores over there. Now let's see what are they doing in the financial activities. They have paid quite a bit of interest and they have repayment of borrowings. So they have repaid the borrowings, right? Which is also a very, very good sign, and they stand at zero cash, which is fine as long as the company is reducing the borrowings, it is fine. जहां तक कि प्रमोटर्स की बात है, देयर होल्डिंग हैज बीन कांस्टेंट एंड थोड़ा थोड़ा एफआईएस की एंट्री हुई है। और जहां तक बात है कि पब्लिक की, पब्लिक थोड़ा सा कम हुआ है और वो शेयर जो है जाके एफआईएस के पास गया। आपकी स्क्रीन पे एरीज एग्रो का चार्ट है, ये एरीज एग्रो का चार्ट है और आप नोटिस करिए कि ये कप एंड हैंडल बना रहा है, एक बिग राउंड बॉटम एंड द सेकंड राउंड बॉटम, एंड टुडे this neck which was there has been broken, right? Now what could be expected? अभी आज इसका क्लोजिंग हुआ है 207 के आसपास, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। जो इमीडिएट टारगेट मुझे दिखता है इसका इज अराउंड 250-260 के आसपास दिखता है। उसके बाद एक टारगेट हमको 292 का भी देखने को मिल सकता है। अगर ये 300 के टारगेट को ब्रेक करता है, अगर ये स्टॉक 300 के टारगेट को ब्रेक करता है तो आने वाले समय में 350, 375 एंड 400 के टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे टारगेट्स के लिए वेट करिएगा, ना मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसमें बाय करिए। आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं कि अगर ये नीचे गया, अगर यहाँ तक नीचे आया तो आप इसमें और ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट लाइक दैट्स गोइंग टू बी 50% ड्रॉप। और अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो आप कितनी क्वांटिटी यहाँ खरीदेंगे, कितनी यहाँ खरीदेंगे, कितनी यहाँ खरीदेंगे, वो आपको बनाना है, पूरा प्लान आपको बनाना है। बट एक चीज नोटिस आप कर सकते हैं कि स्टॉक अपने आप को 100 के आसपास 40 से चलते चलते ये 200 पे 192 पे गया, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और 100 के आसपास इसने एक बॉटम बनाया और फिर वहां से चलना शुरू किया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके फंडामेंटल्स में सेल्स में लगातार ग्रोथ है। अगर मैं इन सारे पॉइंट को एक साथ रखती हूँ तो मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। और अगर आपको याद होगा, आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा कि नहीं याद होगा, इसी का एक भाई बंधु है जो मैंने आपको दिया था, मैंने इसकी एंट्री दी थी 400 रुपए पे, 340 रुपीज पे था शायद ये कभी। वी हैव एंटर्ड, आई थिंक यहाँ पे कहीं पे दी थी 442 पे, और 442 से ये स्टॉक सीधा गया है 1783 पे, बेस्ट एग्रो, राइट? ये स्टॉक इसी तरीके का स्टॉक है, इसी जॉनर का स्टॉक है और इसी तरह का। एक बार इसके भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं, हाउ डिफरेंट आर दे फ्रॉम द। सो 3461 करोड़ की कंपनी है, पी बहुत रीजनेबल है, आरओसी आरओई बहुत बढ़िया है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। इनकी सेल्स देख लेते हैं, आप देखो सेल्स में जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है, फ्रॉम 45 करोड़ टू 700 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन डिसेंट एंड अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है।
और जहां तक हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो कभी ये जीरो बोरोइंग पे था और अब रिजर्व एंड बोरोइंग आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल. They have produced negative cash from the activity, which is again not a very good thing. और अगर आप FIS का प्रेजेंस देखेंगे तो कहीं पे कभी एक समय पे 14% पे भी था, अब कम होके थोड़ा सा 11.3% पे आ गया. तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो एरीज जो है बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है. मतलब अगर कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे शुरू से ही होते तो ये स्टॉक 207 पे ना हो के कम से कम 400-500 पे होता. प्राइस बहुत रीजनेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और देखने में अगर आप देखते हैं प्राइस ब्रेकआउट हैज बीन वेरी वेरी पावरफुल टुडे. और जिस तरह का ब्रेकआउट उसने दिया है उससे ऐसा देख के लगता है कि एक टारगेट हमको 250-260 का आता हुआ दिखता है इसमें, which is also going to be about 25% return, and that will be in few days. So I think this is what I wanted to present. And but again, आपको अपना money management करना है. I am trolled by you people for that 𝐸𝐴Mine. Don't you have any stop loss in place? Don't you have your own rules? कि अगर 10% नीचे जाएगा तो मैं exit कर लूंगा. I give you trades every single day. You know, people must have made money in billions of shares, but वो एक दो shares ऐसे हैं जो नहीं चलती. अब 5,000 शेयर में 10 शेयर ऐसे नहीं चलते. One guy had the full list of the stocks that never worked. He had no list of what worked. He had the list of what didn't work. Great, maintain it, but maintain your own records as well. How many rules you have for yourself? What rules do you follow? कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते हो, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वो कुछ तो करोगे ना आप. मैं स्टॉक ढूंढ रही हूँ, मैं एंट्री दे रही हूँ, मैं एग्जिट दे रही हूँ, मैं आपको सब बता रही हूँ. आप कुछ भी नहीं करोगे. अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आपका स्टॉक भी नीचे जा रहा है तो आप कुछ नहीं करोगे इसके लिए. You have to do your money management at least. So manage your trade yourself. That's your responsibility, right? And आपको खुद स्टॉप लॉस लगाना होगा. आपको ट्रेड प्लान खुद बनाना होगा कि आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो कि ऊपर बाय करना चाहते हो कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, वो चॉइस आपकी है. मैं केवल आपके साथ फंडामेंटल शेयर कर रही हूँ. ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए, ना मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसमें एंट्री लीजिए. मैं केवल एक स्टॉक आपको प्रेजेंट कर रही हूँ. अगर आपको अच्छा लगता है तो बाय करिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत करिए, आपकी चॉइस है. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मनी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेडिंग. डोंट से आपने बताया था तो मैंने कर लिया. बहुत लोगों आप ये लिखते हो कि आपने ये ट्रेड दिया था, अरे तो मैंने दिया था, लिया तो आपने. मैं तो रोज हजारों, मैं तो महीने में कम से कम 100 ट्रेड्स देती हूँ. बट डू यू टेक ऑल 100 ट्रेड्स? नो. सो व्हाट यू सेलेक्ट इज योर चॉइस ना. हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स? ओनली थिंग आई सेलेक्ट स्टॉक फॉर यू. So anyway, I think I have given whatever I wanted to share with you people. And आपकी चॉइस है, अपनी एनालिसिस पहले खुद करिए. ये वीकली ग्राफ है, एरिस का वीकली ग्राफ है. और आज आप वीकली पे भी देखेंगे तो इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दी है. अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं. नीचे देखिए वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं. जब नीचे गिर रहा था स्टॉक, वॉल्यूम्स लो थे. आज ब्रेकआउट जब आया तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे. और आप देख सकते हैं ये कप एंड हैंडल बन रहा है. देखने में अच्छा लग रहा है, टेक्निकली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली अच्छा लग रहा है. आपकी चॉइस है, आपको लेना है नहीं लेना है, आप देख सकते हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग माय रिसर्च. Do join me for the live trading, and we'll be sharing some beautiful pics in that live trading. Or do join me on the Telegram. I give some outstanding stocks over here. You can make good money. And with this, I'll be signing off. Take care and see you in the next video.